السلام علیکم خواتین و حضرات، میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کو یوم آزادی مبارک ہو۔ آج ہمارے ہاں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے بھی دیکھا اور تحریک پاکستان میں حصہ بھی لیا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کرنل ریٹائرڈ محمد سلیم ملک صاحب سے۔ کرنل صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ آپ کی بڑی محبت کہ ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئے۔ ذرا یہ فرمائیے کہ جب پاکستان بنا تو آپ کی کیا عمر تھی اور کس کلاس میں پڑھتے تھے؟ جس وقت پاکستان بنا ہے اس روز میری عمر تھی 20 سال 4 مہینے اور 17 دن۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اس ملک کے بنتے وقت حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کے نیچے کام کیا۔ تو کہاں پڑھتے تھے جی آپ؟ میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ کرنل صاحب، ذرا یہ فرمائیے کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسلامیہ کالج لاہور آنا زیادہ پسند کیوں کرتے تھے؟ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ جو ہے وہ جنرل ہیڈ کوارٹر تھا تحریک پاکستان کا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہاں تقریباً میرے حساب سے 16 سے 17 دفعہ تشریف لائے۔ ہیڈ کوارٹر کی وجہ سے یا تحریک وہاں پہ زیادہ زور پکڑے ہوئے تھی؟ اصل میں میرا ذاتی خیال ہے یہ کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک سے نا امید ہو چکے تھے۔ صرف اپنی امیدیں جو ہیں وہ نوجوانوں سے وابستہ کیے ہوئے تھے۔ جناب کرنل صاحب، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نال تہاڈی پہلی ملاقات کتھے ہوئی تے انہوں نے تانوں کی پیغام دیتا؟ نومبر 1945 کا واقعہ ہے۔ جی۔ سرحد مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا اجلاس تھا پشاور میں۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو جتنے بھی جلسے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اس وقت ہوتے تھے تو جو مسلم لیگ کا پنڈال بنا ہوا ہوتا تھا نا، اسی میں آخری دن مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بھی اجلاس ہو جاتا تھا۔ اچھا۔ تو اسی طرح سرحد مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا اجلاس تھا۔ پنجاب سے ہم میرا خیال ہے 4 5 یا 6 لڑکے گئے ہوئے تھے۔ تو جس وقت میں پنڈال سے نکل رہا تھا تو پیچھے سے ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا ہے۔ وہ کہتا ہے جی آپ کو جناح صاحب بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا ہوا، میرے ساتھ تھوڑی دور پنڈال تھا۔ جی۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج سے اتر رہے تھے۔ اچھا جی۔ آگے وہ تھے، پیچھے خان عبد القیوم خان تھے، فدا محمد خان تھے، میرا سردار عبدالرب نشتر تھے اور کچھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سرحد کے لڑکے تھے۔ تو جس وقت میں پہنچا ہوں تو آپ نیچے زمین والے پہنچ چکے تھے، وہ جو سیڑھیاں تھی 2 وہ گزر چکے تھے۔ تو وہ کہتا ہے سر ہی از فرام لاہور۔ تو وہ کہتے ہیں ہیلو ینگ مین ہاؤ آر یو۔ میں نے کہا تھینک یو سر۔ کہتے لک دیر از الیکشن گوئنگ آن ان لاہور، آئی وانٹ یو ٹو گو اینڈ فائٹ دیٹ الیکشن، آئی ول گیٹ یو پاکستان۔ اور یہ جب ان کی انگلی کھڑی ہوتی تھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آخری حکم ہے۔ دوسرے روز ہی جلسہ ختم ہوا، لاہور آ گیا۔ جی۔ اپنے ساتھیوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نے لاہور والی سیٹ چھوڑ دی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں نے تو فرام ہارس ماؤتھ سن کے آیا ہوں اور میں اس کے پیچھے جاؤں گا، تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ تو الیاس داؤد ہوتا تھا، وہ میرا کلیگ تھا۔ وہ کہتا ہے بھائی بات سنو، اگر آپ نے کہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم نے یہ فائٹ کرنی ہے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم گئے میاں امیر الدین کے پاس، جو شہر کے اندر کشمیریوں کے بہت بڑے لیڈر، بڑے ایماندار، سمجھدار، جو بھی آپ کہہ لیں، بہت اچھے لیڈر تھے۔ تو میاں صاحب کے پاس گئے، میاں صاحب کہنے لگے دیکھو ایک بات سنو، میری غلطی یہ تھی کہ میں مردوں کے پیچھے گھومتا رہا ہوں، مجھے مردوں نے پورے ووٹ دیے، مجھے عورتوں نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ تم زیادہ زور دو عورتوں کی طرف،
ਅਗਰ ਇਹ ਸੀਟ जीतनी है तो। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? औरतें जहाँ मिली ना जरा उम्र रसीदा जी उन्होंने तुम्हारा बेड़ा गर्क होए ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋ ਪਏ। क्योंकि जो मुस्लिम लीग का टिकट था वो मौलाना जफर अली खान के पास था, जो खाकसारों का टिकट था वो था खालिद लतीफ गाबा, असल में उसका नाम था कुंदन लाल गाबा। अच्छा, वो हिंदू, उसका बाप दिवालिया हो गया था, वो बाप बेटा बड़े समझदार थे, बेटे को उसने मुसलमान बना दिया और हम आगे से बेवकूफ कौम उनको मिल गए। पैसा था कांग्रेस का और जितनी हिंदुस्तान की जमातें थीं जो इस्लाम का नाम लेती थी वो सब कुंदन लाल गाबा के पीछे थी। मैं आया शाम को घर, तो शाम के खाने के ऊपर मेरी वालदा पूछती है क्या हुआ है तुम्हें, कल परसों के पिशावर से आए हो तो तुम क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा कि अम्मी कायदे आजम साहब ने फरमाया है कि इलेक्शन लड़नी है, तो जिधर गया औरतों ने गालां कटियां। ये उनसे बात की है तो वो कहते हैं चुप करो, तुम खाना खाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो मेरी वालदा 5 जमातें पढ़ी हुई थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन समझी जाती थी ये पढ़ी लिखी है। तो वो मेरे साथ गई, जो उनकी मतलब जो सहेलियां थी वो भी उनकी उम्र की थी जी। तो वो उनके पास गई तो उन सब ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। इतना कम वक्त था जी, उसके अंदर जिस वक्त जिधर भी गए हैं ना हर एक ने हमारी मदद की है। ये मदद क्या थी? उस अल्लाह का करम था। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त लाहौर की इलेक्शन का शोर मचा हुआ था कि ये सीट मुस्लिम लीग नहीं जीत सकती। हम हर जगह गए और उस अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूं जी, कि मौलाना जफर अली खान को 4000 से ज्यादा वोट पड़े। उस वक्त 4000 वोट बहुत बड़े, बहुत ज्यादा था। हाँ जी, और कुंदन लाल गाबा को 600 वोट पड़े सारे। जिस वक्त ये इलेक्शन का रिजल्ट निकला जी, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग ने शोर मचा दिया कि हमने सब पार्टियों को शिकस्त आम दिया और सारी पार्टियां जी वो दबक गई। उस इलेक्शन का रिजल्ट के बाद हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जनवरी के महीने में लाहौर तशरीफ लाए। जलसा था, जलसे के अंदर हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सबको ये ख्याल था कि पूरा साल आप इधर नहीं आए हैं तो ये जलसे में वो तकरीर करेंगे कुछ घंटा 2 घंटे। जब वो तकरीर करने खड़े हुए हैं तो दाईं तरफ मुबारक मस्जिद है। हाँ जी, तो वो ये उस वक्त जो था ना हमारा ब्रांडर रोड, उसकी बैक की तरफ थी स्टेज बनी हुई। जी हाँ जी, तिबिया कॉलेज की तरफ। देविया कॉलेज से थोड़ा सा आगे। तो वो जिस वक्त तकरीर कर रहे हैं तो अजान की आवाज आई, सब हैरान हो गया कि ये इस वक्त। तो कायदे आज़म हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद तकरीर खत्म की और बैठ गए। तो पूछते हैं ये नमाज का वक्त तो नहीं है, अजान का ही है। पता ये चला कि इलामा मशरकी साहब वो अजान दे रहे हैं मुबारक मस्जिद में। तो इतनी देर में हमें पता चल गया कुछ 60-70 खाकसार थे जिनके पास बेलचे थे। तो इलामा साहब मुबारक मस्जिद से निकल के जिस वक्त आगे आए हैं तो हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें देख लिया। उन्होंने अपनी कुर्सी पकड़ाई कि ये इनको दे बिठाने के लिए। हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कहनी थी ना 2-3 घंटे में जी, वो 20 मिनट में खत्म कर दी, क्योंकि मेरी ड्यूटी उस रोज उनके साथ थी। तो आपको ये पता है कि मैं आपको पता है कि इस बात कहता हूँ कि आपके वालिद साहब के हम ताबियादार थे, वो इस्लामिया कॉलेज में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो जिस वक्त
हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आगे आगे थे, मियाँ अमीरुद्दीन उनके साथ थे, तो वो कार में जिस वक्त बैठे हैं तो हम भी कार में बैठ गए, अच्छा, क्योंकि हमें खतरा पैदा हुआ कि अभी इनकी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। वो कहते हैं नो, यू गेट आउट, लीव मी टू द गॉड, गो एंड डोंट अलाउ इलामा टू स्पीक फ्रॉम दिस स्टेज। हम लड़कों को उन्होंने उतार दिया कि मुझे खुदा पे ऊपर छोड़ दो, जी हाँ, क्या बात। और तुम जाके वो स्टेज से तकरीर नहीं करने देनी इलामा को। जिस वक्त मैं पहुंचा हूं वापस स्टेज पे, तो खाकसारों ने स्टेज पे कब्जा कर लिया हुआ था। स्टेज पे कब्जा करने के बाद इलामा साहब सेंटर में थे, स्टेज के चारों तरफ खाकसार बेलचे लेके खड़े थे, जो आगे आता था उसको बेलचा मारते थे, कोई ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। तो मेरे साथ थे मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी जी, वो उस वक्त मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी नहीं थे, अब्दुल सत्तार न्याजी थे, जी हाँ, सिर्फ हमारे साथी थे। उन्होंने जेब से निकाला एक चाकू, ये अमरूद काटने वाला। जी जी, तो हम उनको मजाक करते हैं, इतना बड़ा न्याजी थे, चाकू गए वे। हाँ, वो कहते नहीं, ये बातें मत करो, पहले ये कनातें काटो। हमने 2 कनातें ही गिराई है ना, तो वो शामियाना ऐसे गिरा है कि वो सारे खाकसार जो है वो उसके अंदर आ गए, शामियाने के नीचे। शामियाने के नीचे। हमने जो 4-5 बांस थे ना वो निकाल लिए, निकाल के थे, जो हमसे हो सका है ना वो उसके अंदर थे, हम ऊपर से बांस मार रहे थे। जब वो बाहर निकले है ना तो ऐसे दिखाई देते हैं भूत। हाँ इलामा साहब को भी समझ नहीं आई कि ये क्या बना। हाँ, बिल्कुल। जब ऊपर देखा है तो मुझे लड़कों ने कहा कि वो आपको को ऊपर बुला रहा है। तो उस वक्त वहां पे मलिक उमर याद खां, प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, और आईजी पुलिस खड़े थे, अंग्रेज था वो, मैं तो उसको जानता नहीं था। जो इंस्पेक्टर पुलिस था वो कहता था कि ट्राई टू गेट दिस इलामा आउट ऑफ दिस कॉलेज। नाजरीन, गुफ्तगू जारी रहेगी, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्त। कर्नल साहब, जरा ये फरमाइए कि जब हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड तशरीफ लाते थे तो आप किस तरह इस्तकबाल करते थे? आपको एक छोटी सी मजाक की बात बताता चलूं। जी जी हम लड़कों ने फैसला किया कि ये हमने इलेक्शन जीती है जी, और हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का शानदार जुलूस निकलना चाहिए। तो हमने सब ने बैठे हुए सोच रहे हैं, 3 कारों से चौथी कार हमें नहीं मिल रही थी कि जो आज बड़े फन्ने मुसलमान बनते हैं ना, जी जी, इनके पास साइकिल भी नहीं थी। तो मैंने ऐसे जैसे लड़के बरक मार देते हैं ना, जी जी, मैंने कहा यार 2 कारें मैं ले आऊंगा। वो सबने कहा यार 5 कारें हो जाएंगी हमारे पास। मैं अपने एक ताए के पास गया, मैं कहता है जी कल कार चाहिए जी, जिसो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ ना, तो टांगा भेज दें। हाँ, अच्छा, मैंने कहा अच्छा ताया जी। मैं जिस वक्त आगे निकल के आया हूं तो उन्होंने मुझे दूर से आवाज दी, ओ सलीम। मैं वापस गया, मैं कहा जी ताया जी। वो कहते ओए वो 2 कारां तू की करनी है जी, मैं कहता है जी साडे कायदे आज़म आ रहे ने ते असी उन्हां दा जुलूस ओए तेरा बेड़ा तर जाए, ओए गड्डी गई ते ओ डीसी नूं पता लग जाएगा। 2 की बजाय 1 भी नहीं दी। और मैं जिस वक्त गया उस रेलवे स्टेशन में इस तरह मुंह किए हुए कि मैं क्या इनको बताऊं। तो उन 3 कारों में हमने बाकी ये टांगे थे। उस जुलूस में हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को इस्लामिया कॉलेज पहुंचाया। कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ पैगाम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ तक याद है? मुझे अच्छी तरह याद है, तीसरे रोज हमें फिर एड्रेस किया। वो कहते हैं आई एम ऑलवेज फॉर द एजुकेशन, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू पीपल टू गो फॉर द एजुकेशन, बट टुडे आई एम आस्किंग
ملک عمر یاد تو میں جو اچھی طرح یا ملک عمر یاد جس طرح آتا ہے نا کچھ جو تو وہ کہتے ہیں ناؤ آئی ریکویسٹ ملک عمر یاد the principal of the college to allow the students to go and serve their nation. I want you to, each one of you, to go and fight this election. This will change the history of this country. اس طرح کی تقریر تھی. میں اتنی اچھی انگلش تو نہیں بول سکتا لیکن جو چند لفظ مجھے یاد ہے وہ آپ کو عرض کیا. خواتین و حضرات، گفتگو کرنل صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ مسلم لیگ کے رہنما اور ان کے ورکرز ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیغام رسائی کرتے تھے؟ اس وقت ٹیلی فون نہیں تھا. ہمارا پیغام جو ایک دوسرے کو پہنچانا ہوتا تھا نا وہ کس طرح تھا. آج بھی کئی پوچھتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی. اس وقت لاہور میں ٹانگے جو چلتے تھے نا ان کا نظام بڑا مضبوط تھا. جس طرح مزانگ سے جو ٹانگے ہیں یا دلی دروازے جاتے تھے یا باٹی دروازے جاتے تھے. ساندے کے ٹانگے جو ہیں وہ موڑی دروازے جاتے تھے. شہر کے جو ٹانگے تھے وہ داتا صاحب سے جو چلتا تھا وہ کیا نام ہے اکبری دروازہ سے آگے جو دروازہ ہے وہاں تک جاتے تھے. تو وہ جس وقت جاتے آتے تھے نا تو ان کو جتنی ہمدردی ٹانگے والے کو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ تھی کسی کو نہیں تھی. تو یہ اطلاعیں جو پیغامات ہیں جو پیغامات جو ٹانگے والے ہمیں پہنچاتے تھے صرف ان کو پتا ہے. ڈاکٹر ضیاء الاسلام جو تھے یہ رہتے تھے شیرا والے دروازے کے اندر جی. وہ ٹانگے والے کو دیتے تھے. ٹانگے والا خود بخود جو ساندے والا جا رہا ہے نا اس کو پتا ہے موری دروازے سے جاتا ہے. کسی ٹانگے والے کو اس نے دینا ہے کہ یہ بھائی وہ سلیم ملک کو پہنچانا ہے. مجھے گھنٹے کے اندر اندر وہ پیغام مل جاتا تھا. ایک واقعہ بتا دوں چھوٹا سا. جی. کنونشن تھا مولویوں کا کلکتے میں. جی. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ممدوٹ ولا میں رنگ کیا نواب ممدوٹ کو کہ بادشاہی مسجد کے امام تھے اس وقت غلام مرشد صاحب کہ غلام مرشد صاحب کو پیغام دیں کہ وہ پرسوں کلکتے میں اس جلسے میں پہنچے اور ڈیفینڈ کریں مسلم لیگ کو اور ہمارا نقطہ نظر مسلمانوں کا وہ پہنچائیں. ذوالفقار ممدوٹ نکلتا ہے اپنے گھر سے. یہ وہ رہتے تھے ممدوٹ ولا شملہ پاری سے تھوڑا سا آگے. وہ ٹانگے والے کو رکا دیتے ہیں. ٹانگے والا ڈاکٹر ضیاء الاسلام کو پہنچاتا ہے. ڈاکٹر ضیاء الاسلام کو غلام مرشد کے گھر کا نہیں پتا تھا. اس کو پتا تھا کہ مجھے پتا ہے. ان کا رکا مجھے آتا ہے. تو ہم پہنچ جاتے ہیں شام کے وقت مولانا صاحب کے پاس کہ جناب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے پرسوں جا کر وہ جلسہ اٹینڈ کرنا ہے کلکتے میں. تو وہ حساب لگا کے کہتے ہیں تو پھر مجھے تو صبح جانا پڑے گا تو تم ایسا کرو میں جاؤں گا تو مجھے پہنچاؤ گے اسٹیشن پہ. ہم نے کہا جی ہم سیٹ کا بندوبست کرتے ہیں. اس وقت رشوت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. ہم نے جا کے ان کی سیٹ بک کرائی. صبح کو ان کے گھر گئے. وہ اس وقت یہ تھا کہ دری میں بسترا ہوتا تھا اور رسی سے وہ باندھ لیتے تھے اور ایک لوٹا ساتھ ہوتا تھا. وہ ہم ان کا اٹھا کے تو ان کو اندر جا کے سیٹ جو ان کی بک تھی وہ بٹھا دیا. وہ پہنچ گئے. تو جس وقت تیسرے روز اخبارات میں آیا تو ہم بڑا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ممدوٹ ولا میں رنگ کیا کہ میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار. انہوں نے کہا نہیں یہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے کیا. یہ جذبہ تھا کام کا. کرنل صاحب اج دے جڑے لوگ نے کہ واقعی انہاں دے جذبے انجی نے جویں ادوں ہوندے سن جذبے. جذبے کے لیے میں آج بھی ہر پاکستانی کو سلام کرتا ہوں. اتنی افراتفری، اتنی بے راہ روی، اتنی کرپشن کے باوجود بھی آپ دنیا کی ایٹم پاور ہیں. ماشاءاللہ. یہ جذبہ جو ہے جو کام کرنے والے ہیں ان میں آج بھی ہے. بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اکٹھا نہیں کر سکے.
जो कोई भी कभी लीडरशिप हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के वक़्त की कभी भी इस कौम को मिल गई, ये आप याद रखें कि हमारी कौम दुनिया की कौम से सबसे बड़ी कौम है। इसने जितने हालात हमारे खराब हुए हैं, जितने हमें हर लीडर ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, जब कोई लीडर आ गया जिसने कौम को कौम के लिए इस्तेमाल किया, तो मुझे इस कौम से पूरी उम्मीद है कि जितने वक्त मुश्किल हमारे ऊपर आए हैं, मैंने खुद देखे हैं, सिर्फ हमें लीडरशिप की कमी है। तो कर्नल साहब, ये जो फसादात हुए, ये तो आपने 45 से लेके और 46-47 तक का यानी सारे जज्बा बताया और वाक़यात बताए। ये जो यानी मुसलमान जो उधर रह गए, फिर जो यानी सारे हादसात हुए, क्योंकि मेरे वालिद ये बताते हैं कि ये रावी का दरिया जो है ये बिल्कुल सुर्ख हो गया था, इस कदर खून था इसमें। रावी की बात करते हैं, मैं कहता हूँ पूरा पंजाब सुर्ख था। मर्द हजरात जो थे जी, वो तो बाहर लड़ने और उनका मुकाबला करने में लगे हुए थे, मगर जो हमारी माएँ बहनें, खालाएँ, मासियाँ, जो चाचियाँ थी, वो दरियाओं के पास अपने बच्चे लेके खड़ी थी। और मर्द ये कह के गए थे कि अगर अल्लाह अकबर आए तो ये इधर ही रहना, और अगर वाह गुरु की आवाज़ आए तो बच्चों समेत छलांगे लगाते दरिया में। ये मेरे बुजुर्ग बताते हैं। मगर ये हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो कहा है कर्नल साहब के काम काम काम, ये अंग्रेजी वाला काम कह गए हैं या उर्दू वाला? कौम ने उसको समझा ही नहीं। बेटा, तुम्हें पता ही नहीं है कि CALM काम काम का मतलब क्या होता है? पूछो कर्नल साहब। अच्छा जी, दसो कर्नल साहब, काम का की मतलब है? काम नहीं, काम 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 खामोशी। अंग्रेजी वाला काम जो है उसका मतलब है खामोश। जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, वो कह गए हैं भी काम करो, काम करो। हमने सब पाकिस्तानियों ने कहा है कि सरकार कह गए हैं काम काम काम, तो मौज लो। हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े लीडर थे, बेशक। मैं थोड़ी सी उसकी मिसाल आपको पेश करता हूँ। खान बहादुर खुरो जो थे, वो वजीर आला थे सिंध के। खुरो साहब ने कहा कि जी आप अपना जो कैपिटल है ना पाकिस्तान का, वो कराची में बनाएं। बन गया, लेकिन चंद दिन के बाद ही खुरो साहब के दोस्तों ने कहा कि नहीं, कराची जो है उसके में हुकूमत जो हो गई ना, वो सिंध की हो गई। हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें बताया कि देखें, जहाँ कैपिटल होता है ना, उस एरिए में सिर्फ हुकूमत होती है कैपिटल की, बाकी सारी जो है वो सूबे का तल्लक है, मेरा कोई तल्लक नहीं है। लेकिन वो उन्होंने कुछ थोड़ा सा कहा कि नहीं। जिस वक्त ये हुआ तो हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने नवाब मंदोड़ से वज़ीर आला पंजाब जी, गवर्नर अंग्रेज था, उसको कहा कि वहाँ से मुझे स्टूडेंट फेडरेशन के जवान भेजो, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जवान भेजो। तो यहाँ से लड़के गए 2 ग्रुपों में जी, कराची पहुंचे तो हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने कहा कि तुम खुरो के पास जाओ, अपने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जो सिंध की है उनके लड़कों को बुलाओ कि पता करो इनके मुतालबात क्या है। लेकिन मैं खुरो साहब को भी, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह साहब को भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने भी खुले दिल से बात की। तो आगा गुलाम नबी पठान एक स्टूडेंट फेडरेशन के थे सिंध के, और एक हमीद साहब थे, ये 2 स्टूडेंट फेडरेशन के थे जिनको मैं आज भी मुझे नाम याद है। ख़वातीन और हज़रात, कर्नल साहब ज़रा ये फरमाइए कि पाकिस्तान कैसे मार्ज़े वजूद में आया और इसका ऐलान किस तरह अहले पाकिस्तान ने सुना? 3 जून को जी। उसके बाद वो डेट देता है कि 14 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद होगा। अच्छा। 15 तारीख को पाकिस्तान आज़ाद होगा, और वो कहता है आज़ादी की जो फंक्शन होगा वो सबसे बड़ा दिल्ली में होगा। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान का तो सिर्फ एक
लगाना है वो टेंट था। 6 अखबार हिंदू लाहौर में थे, जी दिल्ली में उससे ज्यादा थे, पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं 30 थे या 50 थे। हर अखबार का एक ज्योतिषी होता था। अच्छा उन ज्योतिषियों ने हिसाब निकाला सब ने कि अगर 14 तारीख को हिंदुस्तान आजाद होता है तो बनते ही टूट जाएगा। कुंडली कुंडली निकाली कुंडली। हाँ, तो सही हुई ना जी। वो सब के सब जाते हैं, नेहरू, पटेल, गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, जो उनके बड़े बड़े लीडर थे, सब जाते हैं माउंट बैटन के पास कि जनाब आप हमें बताएं। ये हमारे सारे अखबार साथ ले जाते हैं कि अगर 14 तारीख को हम आजाद हुए तो ये तो बनते ही टूट जाएगा, तो हम नहीं चाहते कि 14 तारीख को हम आजाद हो। वो कहते हैं देखे आपका बड़ा मुल्क है, आपने पहले आजाद होना। वो कहते हैं नहीं, हमें बाद में बना दें, लेकिन 14 तारीख को हमने नहीं होना। वो कहते हैं अच्छा फिर अगर ये बात है तो मैं मिस्टर जिन्ना से बात करके आपको बताऊंगा। वो सारे हिंदू यक ज़बान होकर कहते हैं कि नहीं जी आप मेहरबानी करके हमारे सामने जिन्ना साहब की बात करें, क्योंकि पता नहीं वो क्या जवाब देंगे जी। वो इतना उनसे डरते थे। तो माउंट बैटन उसी वक्त उनके होते हुए रिंग करते हैं हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि मेरे पास ये सारे आए हैं, आपने भी ये ज्योतिषियों का पढ़ा होगा अखबार में, तो मेरा ख्याल है अगर आपको 14 तारीख को मैं आजाद कर दूं और 15 तारीख को हिंदुस्तान को करूं, क्या ख्याल है आपका? तो हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसको जवाब देते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट 14 अगस्त, आई एम रेडी नाउ। क्या बात है, वाह वाह। आई एम रेडी नाउ। भाई जून में कह रहे हैं, अभी तुम अगस्त को क्या कहते हो? मैं अभी 13-14 की रात को जी 12 बजते हैं जिस वक्त, तो तलावत होती है रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। जी माशाअल्लाह। 2 मिनट की तलावत होती है, उसके बाद वो तलावत रोक के कहता है अहले पाकिस्तान आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। इस वक्त से आप सब आज़ाद हैं। जिस वक्त वो कह रहा होता है कि आप इस वक्त आज़ाद हैं, वो लैलातुल कदर की आधी रात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये रब्बुल इज्जत ने देखो कैसी मेरा मतलब मुकद्दम और मुकद्दस रात को ये मुल्क दिया हमें। वाह। आप देखेंगे जी कि लैलातुल कदर को अल्लाह का नूर बरसता है। हाँ जब अल्लाह का नूर बरस रहा है उस रात आपको आजादी मिलती है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। तो उस आजादी को कोई मिटा नहीं सकेगा इंशाल्लाह। कदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो में तशरीफ ला के हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की और हमें वो तारीखी बातें बताई जो मेरा ख्याल है कि नाजरीन ने तारीख में भी नहीं पढ़ी होगी। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी
रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा